میرے بھائیو، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت روزوں کی صورت میں ثابت ہے۔ ساتھ ہی اس مہینے میں بہت سی بدعات کا بھی ارتکاب کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر 15 شعبان کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر روزہ رکھا جاتا ہے اس مناسبت سے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی اکثریت ویسے تو اللہ کی عبادت سے غافل ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے دلوں میں یہ بات بٹھائے بیٹھے ہیں کہ سال میں 2-3 مرتبہ شب بیداری کر لی جائے، 4 روزے رکھ لیے جائیں تو عبادت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عبادت کے طریقے رائج ہیں، جو آپ نے بتائے ہیں، وہی مستند طریقے عبادت کے درست ہیں۔ باقی خود اپنی طرف سے کچھ دنوں یا راتوں کی عبادت کو مخصوص کر لینا، یہ درست عمل نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک آیہ مبارکہ سورہ دخان کی شب براءت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے دلیل میں۔ میں وہ آیت آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا اور آپ کو اس کی حقیقت بھی واضح کروں گا۔ وہ آیہ مبارکہ ہے حامیم والکتاب المبین۔ اس واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، یعنی قرآن مجید کے حوالے سے۔ انا کننا منذرین، اور بے شک ہم ڈرانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ دخان کی پہلی آیت کا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آپ سنیے اللہ تبارک و تعالی سورۃ القدر میں کیا فرما رہا ہے۔ یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اور وہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ لیلۃ مبارکہ شب قدر ہی کو کہا گیا ہے، یہ شب برات پر کہاں فٹ کر دیا آپ نے؟ یہ شب قدر ہی کے بارے میں وہاں اللہ نے فرمایا برکت والی رات میں اتارا ہے، یہاں فرمایا قدر والی رات میں اتارا ہے، تو یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو شب قدر کی جو فضیلت ہے، وہ فضیلت اٹھا کر ہم نے زبردستی شب برات کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں پر بھی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر معاملے کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور ادھر کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر کام سے فرشتے اترتے ہیں، ہر کام سے جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا۔ تو یہ ساری بات ایک ہی ہے جو شب قدر کے بارے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دلیل ہی نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ 2 احادیث ہیں جو درست ہیں، جن کے بارے میں شیخ البانی نے کہا ہے کہ وہ صحیح ہیں۔ باقی 5-6 احادیث جو
शब बराअत के हवाले से बयान की जाती हैं वो सब झूठी अहादीस हैं, मौजू रिवायात हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तखुस्सु लैलतल जुमअति बिक़ियामिन मिन बैनिल लयाली, बाकी रातों को छोड़कर जुमे की रात को इबादत के लिए मखसूस मत करो। वला तखुस्सु यौमल जुमअति बिसियाम, और ना जुमे के दिन को रोज़े के लिए मखसूस करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मखसूस मत करो किसी रात को। हाँ, जो रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के लिए या अल्लाह ताला ने इबादत के लिए मखसूस कर दी है, जैसे शब कदर है, ईद की रातें हैं, ये ठीक है, ये दुरुस्त है। और जो शरीयत ने मखसूस नहीं की, हम अपनी मर्ज़ी से मखसूस करके इबादत करेंगे तो ये खिलाफ़े मामूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात चली जाएगी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की ये हुक्म अदूली हो जाए, नाफरमानी हो जाए। इसलिए हमें देखें, इबादत करने से कौन रोक सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में इतना लंबा क़याम फरमाते थे कि आपके पाँव मुबारक सूज जाते थे, इतना लंबा क़याम फरमाते थे। आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह, आप के अगले पिछले गुनाह माफ़ और आप इतना यानी लंबे लंबे क़याम करते हैं कि आपके पाँव मुबारक सूज जाते हैं, तो आपने क्या फरमाया? अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इसके बावजूद कि आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि नबी का हर अमल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल हमारे लिए नमूना है। अल्लाह के नबी ऐसा करके हमारे लिए नमूना बनाते हैं कि तुम ऐसा करो। अल्लाह के नबी को कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि आपका अमल शरीयत है और हमारे लिए नमूना बनाकर हमें ये तरगीब दी गई है कि तुम ऐसा करो। तो मेरे भाइयों, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वही सुन्नत है, जो फरमाया वही सुन्नत है। ये जो हम अपनी तरफ से इस तरह के मामलात कर देते हैं, इसमें हमें अल्लाह से डरते हुए अल्लाह के नबी की बात को मानना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो शाबान की फजीलत है वो सिर्फ रोज़ों के हवाले से है। रोज़े उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रखे जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रिवायत करती हैं, काना अहब्बु शहूर इला रसूलिल्लाह, सब महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा यसूमहु शाबान, रोज़े रखना पसंद था। शाबान में रोज़े रखना पसंद था सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फ़र्ज़ी रोज़े तो रमज़ान में रखने ही रखने, फ़र्ज़ी रोज़ों के अलावा की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था कि शाबान में रोज़े रखे जाए। हत्ता सुम्मा यसिलुहु बे रमज़ान, ऐसे लगता था कि फिर आप रोज़े रखते रखते रमज़ान को साथ मिला लेते थे, यानी लगता था सारा ही शाबान आपने रोज़े रखे, इतनी कसरत से आप रोज़ा रखा करते थे। ये मामूल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाबान में। इसी तरह हज़रत आयशा ही फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शहरिन अक्सर मिन्हु फ़ी शाबान, कि शाबान से ज़्यादा मैंने कभी नहीं देखा कि काना यसूमुहु, आप रोज़ा रखा करते थे, इल्ला कलीला, थोड़ा छोड़ते थे, मगर थोड़े से, यानी थोड़े से दिन के लिए छोड़ते, ज़्यादातर रोज़ा रखा करते थे। और इसी तरह उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि शाबान से बढ़कर किसी महीने में इतने रोज़े आप को नहीं रखते देखा।
تو आपने फरमाया ज़ाका शहरुन, ये ऐसा महीना है कि यग़फ़लुन्नास अन्हु, लोग इस महीने से गाफिल हैं। बैन रजब व रमज़ान, ये महीना रजब और रमज़ान के दरमियान में यानी शाबान। वह हुआ शहरुन, ये ऐसा महीना है कि तुरफ़अउ फ़ीही आमाल, इसमें अमाल अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं। इला रब्बिल आलमीन व अहब्बु अन युरफ़अ अमली व नसाई, और मेरा दिल करता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल जब ऊपर जाए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। यानी गोया अल्लाह रोज़े की हालत में किए हुए अमल को ज़्यादा पसंद फरमाता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखता हूँ। नसाई की ये रवायत। तो मेरे भाइयों, मालूम ये हुआ कि शाबान की फजीलत सिर्फ इस हद तक है कि इसमें कसरत से रोज़े रखे जाए, कसरत से रोज़े रखे जाए। एक रवायत में आता है जो तिरमिज़ी की रवायत है कि इज़ा बक़िया निस्फ़ुम मिन शाबान, जब आधा शाबान बाकी रह जाए, फला तसूमू, तो तुम फिर रोज़ा ना रखा करो। इस रिवायत के बारे में इख्तलाफ है सेहत और ज़अफ़ के हवाले से। कुछ मुहद्दिसीन का ख्याल है कि ये ज़ईफ़ रिवायत है, कुछ कहते हैं सही है। लेकिन अगर इसे सही मान लिया जाए तो पहले नंबर पर जो लोग पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं वो निस्फ़ शाबान के बाद भी रखेंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पर जो शुरू शाबान से रोज़े रख रहे हैं वो भी निस्फ़ शाबान के बाद रोज़े रखते रहेंगे अगर चाहें तो। तीसरे नंबर पर अगर किसी के रोज़े कज़ा हो गए थे वो रोज़े रखना चाहे या नज़र मानी है वो रोज़े रखना चाहें तब भी 15 शाबान के बाद, निस्फ़ शाबान के बाद रोज़े रखे जा सकते हैं। मेरे भाइयों, शबे बारात के बारे में जो दो रिवायात इमाम हज़रत अलबानी साहब ने बयान फरमाए हैं, सही करार दिए हैं, वो तिबरानी, इब्न हिब्बान और बैहक़ी की एक रवायत है। और वो ये है कि वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यत्तलिउल्लाहु तबारक व तआला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शाबान, निस्फ़ शाबान की रात को अल्लाह अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है। फ़यग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही, अल्लाह अपने बंदों में से अक्सर को माफ़ फरमाता है, इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन, सिवाय मुशरिक और कीना परवर के, जिसके दिल में दूसरे मुसलमान भाइयों का के लिए कीना हो, तो ये इनके अलावा अल्लाह माफ़ी देता है। ये तिबरानी, इब्न हिब्बान और बैहक़ी की रवायत है जिसे शेख अलबानी ने दुरुस्त करार दिया। और इसी तरह एक रवायत और है, इन्नल्लाह यत्तलिउ अला इबादिही फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान, कि निस्फ़ शाबान की इस रात को अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है। फ़यग़फ़िरुल मोमिनीन, ईमान वालों को माफ़ फरमाता है। व युमली लिल काफिरीन, और काफिरों को मोहलत देता है। व यदा अहलल हिक़्द बिहिक़्दिहिम, और जो कीना परवर लोग हैं उनको अल्लाह छोड़ देता है, हत्ता यदऊ, जब तक कि वो कीना न छोड़ दें। ये सही जामे अलबानी, शेख अलबानी की है, उसमें उन्होंने इसे बयान किया। इसके अलावा इन रिवायात के बारे में भी बाज़ मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ का कहा है, लेकिन शेख अलबानी क्योंकि मुस्तनद एक मुहद्दिस हैं इसलिए मैंने कहा कि ये उनके नज़दीक दोनों रिवायतें दुरुस्त हैं। अलबत्ता मन घड़त रिवायतें जो मौजू रिवायतें हैं उनमें पहले नंबर पर आप सुन लीजिए, शाबान व शहरी व रमज़ान व शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, झूठी रिवायत कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है, तो ये झूठी रिवायत है।
इसको शेख अलबानी ने मौजू कहा है। और इसी तरह एक और रिवायत, लंबी रिवायत है कि हज़रत आयशा के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। अचानक आप बाहर निकल गए, हज़रत आयशा को पता चल गया, वो भी पीछे पीछे गईं और आप जन्नतुल बकी में गए, वहाँ दुआएं करने लगे और फिर वहाँ से वापस लौटे। तो हज़रत आयशा ने जब देखा कि आप वापस लौट रहे हैं तो आप भागी भागी वापस घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पहुँची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और आपने पूछा कि क्या बात है। आपने हज़रत आयशा ने पूछा कि कहाँ गए थे, तो आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला निस्फ शाबान की रात को आसमान दुनिया पर उतरता है। फ़यग़फ़िरु लिअक्सर मिन शअर गनम कल्ब, बनु कल्ब की बकरियों के बालों जितना लोगों को माफ़ फरमाता है। अब इस रिवायत को बयान करके कहा जाता है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि ये मौजू रिवायत है, इसकी कोई हकीकत नहीं। इस रिवायत का काफ़ी हिस्सा सही हदीस का है। उसमें जो सही वाक़या है वो ये है कि वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात निकले और बाहर जन्नतुल बकी की तरफ गए और आप ने वहाँ दुआएं की और हज़रत आयशा पीछे पीछे गईं और वापस आईं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप से कहा कि आप बताएं कि आप किस लिए गए थे। हज़रत आयशा ने पूछा, तो हज़रत आयशा से आपने पूछा कि आपका सांस क्यों फूला हुआ है, तो वो कहने लगी कोई नहीं। तो आपने फरमाया कि अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो मुझे अल्लाह मेरा रब मुझे बता देगा। तो वो फिर उन्होंने सब कुछ बता दिया। इस तरह ये बात सारी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो आपने फरमाया कि देखें आयशा, जिब्रील आए थे। ये रिवायत सही रिवायत है, यानी इस जगह तक जो बात बयान हुई वो दुरुस्त है। और अगली बात उस सही रिवायत के ये है कि मेरे पास जिब्रील आए थे, मुझे उन्होंने आवाज़ दी ऐसा से, तुझसे छुपा कर। ये अल्फाज हैं फ़अख़फ़ाहु मिनकी, तुझसे छुपा कर, यानी तू सुन न ले, ऐसा मुझे आवाज़ दी। फ़अजबतुहु, तो मैंने जवाब दिया और मैंने भी तुझसे छुपा कर यानी ऐसा जवाब दिया। और फ़करिहतु अन उक़िज़का, और वो इसलिए आगे नहीं आए कि आपने दुपट्टा वगैरह उतारा हुआ था, ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और मेरा ख्याल था कि आप सो गई हैं। हाँ, फ़करिहतु अन उक़िज़की, मैंने नापसंद समझा कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको जगाऊं। और वह खशीतु अन तस्तौहिशी, और मेरा ख्याल था कि तू कहीं डर ना जाए, तो इसलिए मैं खामोशी से निकल गया। फ़क़ाला, फिर आपने बताया, इन्न रब्बका यअमुरुका, हज़रत जिब्रील ने मुझे आकर ये कहा कि इन्न रब्बका यअमुरुका, बेशक तेरा रब तुझे हुक्म देता है, अन तातिया अहलल बकी, कि जन्नतुल बकी वालों के पास जाओ, फ़तस्तग़फ़िर लहुम, उनके लिए बख्शिश की दुआ करो। यानी ये सही रवायत है। इस वाक़े में 15 शाबान का कहीं कोई जिक्र नहीं, 15 शाबान का कहीं कोई जिक्र नहीं। अल्लाह हर रात के आखिरी हिस्से में उतरता है आसमान दुनिया पर, सिर्फ 15 शाबान को नहीं, हर रात उतरता है और वो फरमाता है कोई है बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे बख्श दूं। कोई है मुझसे रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रिज्क दूं। कोई है मुझसे लिबास मांगने वाला, कोई है मुझसे किसी किस्म का सवाल करने वाला, कोई बीमारी में आफियत मांगने वाला, तो ये अल्लाह हर रात को उतरता है, ना कि 15 शाबान की रात के साथ इसे मखसूस कर लिया जाए। तो ये हदीस झूठी है, जिसमें कुछ हिस्सा सही हदीस का मिलाकर उसमें गलत बात शामिल करके
लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक और हदीस को बयान किया जाता है कि आप फरमाते हैं, झूठी हदीस, और वो क्या फरमाते हैं कि जब निस्फ शाबान की रात आए फ़क़ूमू लैलतहा, रात को जागा करो, क़याम करो, वसूमू यौमहा, और दिन का रोज़ा रखा करो। बेशक अल्लाह ग़ुरूब शम्स के वक़्त दुनियावी आसमान पर उतरता है, और वो ये जैसे मैंने अभी कहा, कोई है बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे ये फरमाया। यानी इसका भी यानी शाबान की 15 तारीख से कोई ताल्लुक़ नहीं। हर रात अल्लाह आसमान दुनिया में हर रात को उतरता है। इसी तरह चौथी हदीस जो झूठी हदीस अमूमन शब बारात के हवाले से बयान की जाती है, मन सल्ला लैलतन निस्फ़ मिन शाबान सिंतई अशरत रका, जो 12 रकात ये निस्फ़ शाबान की रात को पढ़ेगा, यक़रा फ़ी कुल्ल रकातिन कुल हुवल्लाह 30 मर्रा, कुल हुवल्लाह वाली सूरत 30 मरतबा पढ़ेगा, लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु मिनल जन्नह, उसे उस वक़्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। वह यशफ़ा फ़ी अश्र मिन अहलिल बैत, अपने घर वालों में से यानी जिसकी चाहे 10 की वो सिफारिश कर सकेगा। वजबत लहुन्नार, जिन पर आग वाजिब हो चुकी होगी उनको आग से बचाने की सिफारिश कर सकेगा। इब्न जौज़ी ने इस रवायत को बयान किया और वक़ाला अन्नहु मौज़ू, और उन्होंने आखिर में ये कहा कि ये मौज़ू रिवायत, और मौज़ू वो होती है जिसे घड़ कर अहादीस में शामिल कर दिया गया। 5वीं रवायत है, मन सल्ला फ़ी हाज़िहि लैलत मिअत रका, जो 100 रकात इस रात में पढ़ेगा, अल्लाह उसकी तरफ 100 फरिश्ते भेजता है। सलासून युबश्शिरून लहू बिल जन्नह, 30 फरिश्ते उसे जन्नत की खुशखबरी देते हैं। व सलासून युअम्मिनूनहु अन अज़ाबिन नार, और 30 फरिश्ते आग से उसे बचा के रखते हैं। व सलासून यदफ़ऊन अन मक़ाइदिश शैतान, और 30 फरिश्ते शैतान के हीलों से उसे बचा के रखते हैं। अच्छा, यहाँ 90 का जिक्र किया, 10 का जिक्र ही कोई नहीं। मौजू रवायत, यानी ये भी मौजू रवायत। तो मेरे भाइयों, ये सारी रिवायात जो मौजू हैं, इनको बयान करना किसी सूरत जायज़ नहीं है। हाँ, जो सही रवायत अगर उसे सही माना जाए तो वो 2 रिवायात जो मैंने शुरू में आपको बताई, इसके अलावा और कोई रिवायत दुरुस्त नहीं। फिर बिदआत से बिदअत आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बिदअत का इर्तिकाब, हलवा पकाते हैं और कहते क्या हैं, दंदान मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हुए थे तो आपको हलवा दिया गया था। ओ मेरे भाई, दंदान मुबारक तो जंग ओहद में शहीद हुए थे, और जंग ओहद शव्वाल की 7 या 11 तारीख को हुई, शाबान का उससे ताल्लुक़ ही नहीं है। ऐसे ही बातें बनाई जाती हैं। इसी तरह बाद लोग शब बारात को मुर्दों की ईद कहते हैं और कहते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, अल्लाह के फरिश्ते और रूहें उतरती हैं। और वहाँ रूह से मुराद रूहुल अमीन, अल्लाह के फरिश्तों के सरदार यानी हज़रत जिब्रील उतरते हैं, ये है। और वो शब कदर के बारे में, और यहाँ ये तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, ये रूहें उतरती हैं। यानी इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अच्छा, फिर आतिशबाजी की जाती है, चरागा किया जाता है, अगरबत्तियाँ लगाई जाती हैं और कुरान ख़ानी का एहतमाम होता है, कब्रों को दुरुस्त करने का एहतमाम होता है। मेरे भाइयों, वो तो किसी वक्त भी की जा सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर इस तरह जो हमारे यहाँ किया जाता है पूरे आलम इस्लाम में कहीं भी नहीं होता। ये पाक व हिंद में ही ये सब कुछ होता है, पूरे आलम इस्लाम में कहीं भी नहीं होता। मेरे भाइयों, आपकी ज़िंदगी में 23 साल तक शब बारात आई, ना चरागा हुआ, ना आतिशबाजी हुई, ना इबादत हुई, ना रोज़ा रखा गया। यानी ख़ास तौर पर वो रोज़े जो पूरे शाबान के हवाले से हैं वो तो हैं,
وہ تو پورے شعبان کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھے گئے۔ تو میرے بھائیوں، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب یہ مغفرت کی رات ہے صحیح حدیث کی روح سے تو کیوں نہ عبادت کی جائے؟ میرے بھائیوں، مغفرت کی رات ضرور ہے، اللہ کو نہیں پتہ، پہلے کبھی آپ نے خیال نہیں کیا، عبادت نماز کبھی پڑھی نہیں، اور اب تم مجھ سے عبادت کر کے یعنی بخشش کی رات کی وجہ سے یعنی مجھ سے بخشش کروانا چاہتے ہو، میں کیسے بخشوں گا؟ میرے بھائیوں، عبادت ہر وقت لازم ہے۔ عبادت کے لیے خاص یہ اس لیے کہ بخشش کی رات کن کے لیے ہے؟ جو پہلے سے عبادت کرتے آئے اور اب بھی اللہ کی عبادت جو مسنون ہے وہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بخشش کی رات۔ تو اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، کیونکہ نبی سے یہ نمونہ ثابت نہیں، اس لیے یہ درست نہیں۔ اسی طرح پھر کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب برات کی کچھ فوائد آپ کو ملیں تو پھر آپ اپنا عقیدہ درست کریں۔ سب سے پہلے اپنا ایمان ٹھیک کریں، دل کو صاف کریں، کسی کے دل میں آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض ہے وہ نکالیں، حسد بغض کینہ ختم کریں، اور تو آپ سمجھ لیں یہ کرنے سے اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ یہ ہے کرنے کا کام جو اس صحیح روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم ہوا قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں کہیں پر بھی یہ شب برات کے حوالے سے جتنی باتیں مشہور ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بدعات ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعت سے بچا کر رکھے، اور سب سے بڑھ کر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔